शुरू कर देता हूँ मैं। हाँ सर हाँ। सर वो आप वो गेन का 1 मिनट चार्ट खोल लो। हम्म। ये वाले नहीं सर, वो जिसमें वो डायगोनल्स बने हैं। सर इसमें ये जो 45 डिग्री एंगल, 0 डिग्री टू 325 डिग्री एंगल, ये येलो येलो लाइन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। और जो सारा। ये पैटर्न्स बना रहे हैं मतलब। हाँ, एक्चुअली मैंने जो नोटिस किया है ना, अगर किसी दिन निफ्टी का 10 साढ़े 10 बजे तक कोई जो भी लाइन पे बन रहा है, अगर इस लाइन पे बन रहा है तो उस दिन ये लाइन यस और सर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइन पे बन रहा है हाँ, तो उस मैं दिन वही ये बोल लाइन रहा और था ये कि वो लाइन कभी इंपॉर्टेंट है। सर हाँ, वो कभी 90 डिग्री और 135 डिग्री भी बन सकता है, कभी 90 डिग्री और 225 डिग्री भी बन सकता बन है। सकता है, बन ही रहा है देखो। 90 डिग्री बन रहा है, 225 बन रहा है, 180 बन रहा है। ठीक है। हाँ, मैं वन वही एटी बन वही रहा है, तो ये पैटर्न समझने में मुझे थोड़ा, पर ये इस दिन बहुत क्लियर था, 8 तारीख को। सिर्फ फॉर टू, मतलब ये वाला एंगल में बना, देखो। सिर्फ ये वाला एंगल में ट्यूसडे चला। में भी सर वो उसी 45 और 225 डिग्री पे बना है आपके, उसके ये सेकंड हाँ हाँ, ट्यूसडे। ट्यूसडे में यस। उसी दिन, उसके पहले दिन भी वैसा ही बना है, उसके उस दिन भी वैसा बना है। ठीक है। तो हम लोग इसको 6 महीना ट्रैक करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट ए, मतलब पैटर्न। ठीक है। करना तो पड़ेगा सीखने के लिए, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है। सो विल स्टार्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? नो Chandan, सर। can you please go in English? Okay, I'll go through English, but what is the comfortable language for all of you? इंग्लिश। Okay, ठीक है। And who asked this to go on English? Is it Sridhar? Yeah, yeah. Sridhar, you cannot understand Hindi at all, or I मतलब mean, थोड़ा maybe समझ? slightly, yeah, I हाँ can ठीक है। So understand do one slightly. thing. I'll tell both in English and Hindi. Wherever you have doubts, you guys can ask me which language I need to explain. I'll try to explain. Okay. I'm comfortable in both. ठीक है. Okay. So ठीक है, अभी OI डेटा कैसे मैं ट्रैक करता हूँ, सो लेट मी गो टू। सर ये ठीक है, पेड है कि फ्री है? दिस इज फ्री। इसका पेड वर्जन भी है, but what I use is free. Every tool what I am going to show you today is free. I am not promoting anyone, but I told that I want to means go for a paid version of this i4 option because I liked their chart and all. तो अभी तक मैं नहीं लिया हूँ, so I cannot tell how good it is, but इन लोगों का एक डेमो वर्जन मैंने यूज किया था, बहुत अच्छा है। इसका बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी है, but I found this is costly like 1200 per month। तो ये फीचर इनका फ्री है, तो मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, ये सेम चीज पाइथन में मैं बिल्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सेंसिबल में कोई हमारे ग्रुप में डाला था। तो वो जो पाइथन में बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल शेयर विथ यू ऑल। ठीक है। ओके। I have हाँ, a Sensible account, paid version. So Chandan, we can connect offline to see if we can utilize it in some shape or form. we can actually, whatever sensible paid version is giving, I am creating the same thing for free of cost in Python, so that no one needs an paid account. But but how will you be able to do that without an API? So technically fires, मतलब either you go with fires or Zerodha. From there you extract the data to a Excel sheet or a CSV, and put it in a Okay, local database. From there you connect to your can Python connect code. the Python. Yeah, Okay, okay, ठीक। got I it, don't got want to it. go technical here, हाँ। चलो but कर सकते हैं, we are trying No, in a okay, different way। okay, no ठीक है। problem. हाँ, Yeah, but I'll connect to you offline, I'll tell you what yeah. exactly I'm making। before that OI का कॉन्सेप्ट तो सब लोगों को इजीली, कोई कौन सा स्टॉक हम लोग एनालिसिस करेंगे OI में? which one you want to I want to analyze? do हाँ actually I want to do Tata Steel only from 708 the way it moved. That day post the earnings call. I was हाँ। able to capture it, but I couldn't take actual trade because I placed my order at a very lower cost. ओके। And it just reversed from there, and then I just didn't have the guts to take the trade only. ठीक है So I ठीक है want to see if why I was able to explain it much more significantly right there. ठीक है ठीक है। So before going to OI concept, फर्स्ट थिंग इज OI को मैं आई ओनली सी इट फ्रॉम द राइटर्स प्रोस्पेक्ट। ठीक है। जहां पे भी OI बन रहा है, मुझे लगता है कि वो OI राइटर बना रहे हैं। ठीक है।
दैट इज आई थिंक तुम लोगों को सब लोग बोलते होंगे कि हाँ जहाँ पे ओआई बन रहा है वो राइटर बना रहे हैं, आई एग्री। पर सब जगह ओआई राइटर नहीं बनाते हैं। जैसे कि अभी इसका प्राइस यहाँ पे है और ये जो छोटा छोटा ओआई बना है ये बड़ा वाला ओआई राइटर बनाया है, ठीक है। पर ये छोटा छोटा ओआई हो सकता है कि कोई लोग हेज किया है या फिर बायर, क्योंकि राइटर, ये देखो ये पूरा जो सिग्निफिकेंट लग रहा है ना ये सब ओआई राइटर ही बनाया है, ये बायर इतना बड़ा ओआई नहीं बनाया है, ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोग बस ये सोचो, जो भी ओआई हम लोग आज सोचेंगे ओआई बनता है बस ऑप्शन राइटर के लिए, ठीक है, क्लियर। सो ओआई वी आर ओनली कंसिडरिंग दैट ऑप्शन राइटर्स आर क्रिएटिंग द ओआई, and if OI is increasing, that means option writers are increasing. If OI is decreasing for a particular strike, that means option writers are decreasing. मतलब कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे तुम्हारा OI इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब और राइटर उसमें ऐड होते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर या नीचे प्राइस जाएगा ही नहीं। अगर कॉल है तो इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, अगर पुट है तो इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। राइटर्स आर सो कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो दूसरा चीज है, राइटर कौन बनता है? जिसके पास बहुत पैसा है मार्केट में, राइट। तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि बड़े लोगों को जो लग रहा है मैं उनके साथ ही जाता हूं। अगर अगर कोई स्टॉक, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, हाँ, टाटा स्टील, ठीक है। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मुझे, ये देखो कितना अच्छा स्विंग आया है यहाँ से यहाँ, मुझे इतना नहीं करना है। मेरा जो है, मेरे को अगर ये पकड़ में आ गया कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊंगा। मुझे वही 10 पॉइंट ही चाहिए बस फ्यूचर में, या 5 पॉइंट ही चाहिए फ्यूचर में। वो मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड में मिल जाए या फिर 10 सेकंड 15 सेकंड में, तो मैं निकल जाता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, विच आई नो इज नॉट स्केलेबल। तो वो धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि कैसे एक पोजीशन में बहुत टाइम रहना है। वो तो बात का बात है, वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सो वी ऑल आर लर्निंग हियर। पर ओआई का मैं जो बोल रहा हूँ अभी अच्छे से समझो। ओआई ओनली राइटर्स आर क्रिएटिंग। जो भी हो तुमको, अगर ओआई बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पे और राइटर आ रहा है, अगर ओआई कम हो रहा है इसका मतलब राइटर्स वहां से भाग रहे हैं, सिंपल, ठीक है। एनी डाउट ऑन दिस? नो, गुड। नेक्स्ट चीज, दूसरा जो प्रॉब्लम है ये है कि ओआई का डेटा मैं जो देखता हूँ, मैं जीरोधा में देखता हूँ ओआई, ठीक है। तो जैसे कि टाटा स्टील का हम लोग ले लेते हैं 1500 सी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो 1500 सी का मैं ले लेता हूँ, ठीक है, गुड। और मैं 3 मिनट में देखता हूँ, क्योंकि एवरी 3 मिनट यहाँ से डेटा आता है, हमारा इंडेक्स से डेटा आता है, तो 3 मिनट में होता है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी ये 3 मिनट में तुम्हारा मूव हो ही जाता है, राइट। यहाँ से मतलब 3 मिनट में तुम्हारा मूव हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मिस हो जाता है या फिर हम लोगों को प्रॉपर वाई नहीं मिलता है। पर वो चीज मुझे कौन कंफर्म करता है? वो चीज मुझे वॉल्यूम कंफर्म करता है, वो चीज मुझे वॉल्यूम कैंडल कंफर्म करता है। प्लस मैं जो मार्केट डेप्थ का 2 वीडियो बनाया हूँ ना, वो चीज मुझे मार्केट डेप्थ का भी बताता है कि क्या हो रहा है मार्केट में एग्जैक्टली। अभी बायर्स एसएलएस क्या सोच रहे हैं, लेवल पे लेवल ब्रेक हो रहा है, ओआई डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज है, तुमको लग रहा है कि हाँ 3 मिनट में तो ओआई का डेटा आएगा तब तक तो मूव हो जाएगा, ठीक है, आई एग्री कि 3 मिनट में मूव हो जाएगा। पर ये ओआई तुमको सिर्फ बस 1500 के आसपास है तो 1500 का ट्रैक नहीं करना है। मैं तुमको 1480, 60, 80, 1500 या फिर 1600 सारा वाई ट्रैक कर रहा हूँ, राइट। ये चारों में से कुछ कुछ ओआई तो मुझे पहले इंडिकेशन देना स्टार्ट करेंगे ना, डेफिनेटली। जो एटीएम या आईटीएम ओआई होते हैं वो पहले दे देते हैं, मतलब तुम्हारा एट द मनी और द आईटीएम ओआई दैट विल गिव यू द इंडिकेशन फर्स्ट, ओके। अदर ओआई विल गिव यू इंडिकेशन लेटर, ठीक है। बट समटाइम्स लाइक at least you will get a glimpse that okay OI is decreasing in all three, ठीक है। तो वो वैसा तुमको पहले पता ही चल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है स्टॉक में। I'll tell you before getting into OI कैसे डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग एक एक टाइम पे देखेंगे। पर अब तक तुम लोग क्लियर हो ना कि तुमको OI क्या चेक करना है। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है उस दिन? बाय करोगे तुम लोग तो कौन सा OI चेक करोगे? पुट का। हम्म,
कौन कौन आंसर दिया ये वाला, दिनेश और कार्तिक? नीलेश। नीलेश, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा मैं क्या देखता हूँ, एंड विल सी के व्हाई यू आर थिंकिंग पुट। ठीक है, एनीवन एल्स? नीलेश मैं You क्या said करता? that बोलो। call अगर call का OI will go down on that particular day, हम्म okay, and your put OI is increasing, हम्म uh, that is also a monitorable करेक्ट aspect, right? करेक्ट, मैं वो समझा, पर मुझे बोलो कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका कॉल का वाई क्या होगा? ऊपर जा रहा हाँ, है मतलब क्या, कॉल जो लोग राइट किए, कॉल राइटर्स को लॉस होगा। क्लियर? ये तो सब लोग क्लियर है ना? correct. एवरीवन इज Yes, क्लियर, और एनीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस यस कि सर। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल राइटर को लॉस होगा, मार्केट ये स्टॉक नीचे जाएगा तो पुट राइटर को लॉस होगा। ये तो करेक्ट हो सब लोग? यस सर। ठीक है, गुड। सोचो कि जिस दिन निफ्टी गिर रहा है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग अपना लॉस बचा, मतलब लॉस काटते हैं, या फिर नया पोजीशन बनाते हैं? क्या शॉर्ट करते हैं? कवरिंग सर। फॉरगेट अबाउट शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अर्निंग, फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। अगर मार्केट या फिर कोई स्टॉक तेजी से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो बड़े प्लेयर्स है वो सबसे पहले क्या करेंगे? अपना लॉस को मिनिमाइज कट करेंगे, या फिर नया पोजीशन बनाएंगे? क्या करेंगे बोलो? they will sell put. लॉस वाली पोजीशन एग्जिट करेंगे। एग्जैक्टली exactly. अगर तुमको किसी चीज में कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पुट या कॉल वो तो बाद में आएंगे, तो पहले क्या करोगे? तुम पहले अपना लॉस को कट करोगे, राइट? उसके बाद नया पोजीशन बनाओगे, राइट? ये तो क्लियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, यस सर। तो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो पहले सबसे पहले तुमको कॉल राइटर्स भागेंगे या फिर नया पुट राइटर्स आएंगे? क्योंकि कॉल राइटर्स भागेंगे क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, नया पुट राइटर्स आएंगे क्योंकि वो लोग नया पोजीशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा जब एक स्टॉक ऊपर जाएगा? सबसे पहले कॉल राइटर्स भागेंगे क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, राइट? So, Sridhar, what I'm telling is that once the stock or market starts going up, the call writers will have loss, right? So they will Yes. try to go move away from their position because loss is getting huge. So they will go away. Then the put writers will come and then they will start creating position because they will create new position and they will get profit, right? So first focus on के loss किसको हो रहा है, उसको track करो। जिसको loss हो रहा है, अगर वो ही भाग रहा है तो इसका मतलब वो सही डायरेक्शन, तुम सही डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, टाटा स्टील का क्या हुआ। टाटा स्टील का तुम्हारा ये हुआ दो, हाँ, 2:02:36। आर यू एबल टू सी द टाइम? 2:36 Yes. है ना 13 तारीख को? टाटा स्टील 2:36 को आके 2:42 में तुमको ये ओआई कम दिखाई दिया, राइट? अराउंड 2:40 you saw that OI is decreasing for 1500, right? तो टाटा स्टील 2:40, let's go to that। 2:40 को क्या हुआ था? 2:25, 30, 35, 40, see this, right? 35, 2:40, so at least at Tata Steel 2:40 को, अगर if you had been monitor the OI, अगर तुमको OI मॉनिटर करते तुमको तो पता चल गया कि नीचे आना शुरू हो रहा है, राइट? 2:40 में ये कितने लोग समझ नहीं पा रहे हो ये चीज? ये ओआई बढ़ रहा था, मतलब क्या हो रहा था? एक कॉल में ओआई बढ़ रहा है मतलब राइटर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कॉल में ओआई कम हो रहा है मतलब राइटर्स निकल रहे हैं क्योंकि उनका लॉस हो रहा है, तो वो लोग लॉस कट कर रहे हैं, राइट? तो 2:40 को यस सर। 2:40 को वो तुम लोग, और ओआई में ना ऐसा मत सोचो कि मुझे ये आएगा तो करूंगा, नहीं, ये इतना ही दिखाई देगा तब तुमको पोजीशन लेना है। समझ रहे हो ना? इंटरसेक्ट के टाइम पे। वो फॉरगेट इंटरसेक्ट, ये मैंने बस ये सोचने, मतलब अपने देखने के लिए लिया हूँ। जब रियल मार्केट में आता है, स्कैल्पिंग करता हूँ, ये इंटरसेक्ट कुछ नहीं देखता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ट्रूथ बोल रहा हूँ। मुझे दिखाई दिया ओवाई बढ़ रहा है, ऐसा स्लोप में नीचे आ रहा है, और मैं देखा यहाँ पे वॉल्यूम भी मुझे, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम में टाटा स्टील का कुछ हो रहा है, तुरंत पोजिशन लूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे तब देखो इतना बड़ा हुआ। ये मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये तुरंत पोजीशन लेना है, क्या करना है। पर ऐसा मत सोचो कि इंटरसेक्ट होगा, ये लूंगा बोलूंगा, वो तो सब मतलब दैट इज फॉर बुक्स, ओके? बाय द टाइम यू वेट फॉर दिस इंटरसेक्ट इट इज ऑलरेडी 250। ठीक है, 250 को तुम्हारा क्या हुआ था देखो, थोड़ा एडजस्ट होगा, 250, 45, 50, देखो तब तक तुम्हारा ये पोजीशन भी हो गया था। ठीक है,
तो मैं क्या बोल रहा हूँ 240 को तुमको आया मतलब वहां पे पोजीशन लेना है। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। क्यों मैं बोलता हूँ कि मैं वो एक ही सिस्टम इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले विवाप के ऊपर बाय करता था, विवाप के नीचे सेल करता था। दैट आई डिड फॉर 2 years। ठीक है, कैश में, सिर्फ कैश में, विवाप के ऊपर बाय, विवाप के नीचे सेल। ठीक है, धीरे धीरे उसमें फिर मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लाया मितेश सर का वीडियो देखने के बाद। फिर अभी ये अपना प्रोफेसर सर और उनसे सीख के मैं वाइफ का कॉन्सेप्ट लाया, पर मैं वही करता हूँ, एग्जैक्टली वही चीज। विवाप के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव है, ओआई मुझे दिखा रहे हैं, बाय करूंगा। ठीक है, और मैं वेट नहीं करता कि ओआई आएगा पूरा नीचे आएगा मैं करूंगा, नहीं। ओआई अच्छे से बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखा मतलब मैं तुरंत वो स्टॉक में बाय करूंगा। अभी द ओनली डिफरेंस इज मैं सिर्फ ये एक वाई नहीं देखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे टाटा स्टील में पोजीशन लेना होता है 240 में, तो 240 से पहले 235 को, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था उस टाइम क्या था, 1400 के आसपास था प्राइस, 1420 के आसपास, राइट। ठीक है, तो मैं क्या क्या वही चेक करता, 1400 के पास पास क्या था मेरा, 1440, 1460, 1480, ऐसा सब था, राइट। 1400 ये सब था। तो हम लोग आइडियली उस टाइम कौन सा ओआई देखते, 1400। ठीक है, 1440। Hey guys, you guys are getting it till this point? Yes. 1400, ठीक है। अभी अगर मुझे उस दिन टाटा स्टील को ट्रैक करना था, तो मैं, क्योंकि प्राइस उस टाइम 1400 के पास था, तो मैं और 1400 के पास बढ़ा हुआ ही था। ये तो देखो अभी कम हो गया है, पर उस दिन तो इतना ही था, राइट। इसके ऊपर भी शायद होगा उस टाइम। जो भी हो, 1400 को मैं ट्रैक करता और इसके ऊपर 1440 को करता क्योंकि यहाँ पे अच्छा हुआ ही था, 1420 को भी करता और 1460 को करता क्योंकि यहाँ पे अच्छा हुआ ही था, और 1500 को भी करता क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ ही था। ठीक है, तो ये तीन चार स्ट्राइक प्राइस में चेक करता टाटा स्टील का। और ये कितने बजे मुझे दिया है सिग्नल, वही 240 को आसपास दिया है। कौन सा दिया है, 1400 का। देखो 1400 का, पर तुम देखो ये जो ओआई इंक्रीज हो रहा था ना, देखो पहले तो 1400 का ओआई डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे जो लोग एक्चुअली मतलब ओआई प्लेयर्स है ना, वो लोग कितना चालाक है देखो। राइटर्स, राइटर्स कहाँ भागे हैं, सुबह 9:30 बजे राइटर्स, जो लोग मेजर राइटर्स थे वो भाग गए हैं। ठीक है, जिन लोगों को पता था कि शाम को आज बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, ये कुछ नया राइटर्स फिर से आए हैं, बट दे गॉट ट्रैप्ड। तो टाटा स्टील तुमको मॉर्निंग में ही उस दिन बता दिया था 1400 वाले सी क्यों इतना वाइड डिक्रीज हुआ। मुझे बोलो कोई स्टॉक उससे पहले तो कहीं किसी दिन मॉर्निंग में इतना बड़ा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हर रोज का मॉर्निंग हम लोग देख रहे हैं, कुछ तो बड़ा नहीं हुआ है। उस दिन मॉर्निंग में ऐसा क्यों तुरंत इतना बड़ा क्यों किया, बोलो, पंप एंड डंप क्यों हुआ है वो आएगा। ठीक है, जिन लोगों को, बड़ा प्लेयर्स जो है, जिन लोगों को पता था कि टाटा स्टील मूव करेगा, वो ऑलरेडी दे दिए थे। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि आज टाटा स्टील कुछ तो बड़ा मूव करने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो वाई ड्रॉप हुआ, कुछ लोग निकले, फिर वाई इंक्रीज होता गया होता गया होता गया, और यहाँ पे वाई कुछ चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई कोई नया राइटर नहीं आया। वो सब छोड़ दो, तुमको तो एटलीस्ट यहाँ पे मिल गया ना एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट 242 को। ये वाई डाउन डाउन आ रहा है 1400 का, 1440 का कितने बजे डाउन आया। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज है ओआई एनालिसिस के लिए। सो तुमको 1400 का ओआई नीचे आ रहा है 242 को, राइट, और 1440 का ओआई इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कैन एनीवन टेल व्हाट इज हैपनिंग इफ 14 स्टॉक इज गोइंग अप, मतलब टाटा स्टील 1400 के, हाँ 240 को कहा, हाँ यहीं पे उसके नीचे जाता है क्या, 1 मिनट कैंडल में, 2 मिनट कैंडल में, 3 मिनट में जाता है ना। हाँ, हाँ सोचो कि 240 को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, अच्छे से समझने का कोशिश करो। ये जगह पे क्या हो रहा है, 1400 का ओआई नीचे आ रहा है और 1440 का ओआई ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है इसका मतलब, Means two things. One, writers are moving their position from 1400 to 1440, and then there might be fresh buying coming in. forget about buying, ओआई ओनली
You think from the writer's prospect. Why they are Yeah, moving? then writers are changing their question from 1400 to 1440. Okay, and what is happening in 1500 OI on the same time? Exact same time, right, Sridhar? 1500 Yeah. OI is decreasing, right? So 1400 का डिक्रीज हो रहा है, 1440 का इंक्रीज हो रहा है, 1500 का डिक्रीज हो रहा है, क्यों? और उस टाइम स्टॉक Where are देखो, you seeing? Sorry, हाँ, Chandan. Where are you seeing 1500 OI increasing? Sorry. इंक्रीजिंग नहीं, 1500 OI डिक्रीजिंग. See, So this line which you have drawn is of 1500 OI, क्या? this is 1500 1500 what? OI, okay? Oh, This okay, is okay. Multiple 1440 tabs. OI. You have to watch Okay, multiple. got That it. is the reason I am building a Python tool कि सारा OI एक जगह तुमको दिखे, ठीक है? Okay, ओके okay. ये 1400 का OI है, ठीक है? मैं फिर आऊंगा थोड़ा डीप एनालिसिस में, मैं आऊंगा. अभी तो इतना, पहले तो इतना देखो. सो 1400 का डिक्रीज हो रहा है, 1440 का इंक्रीज हो रहा है, 1500 का भी डिक्रीज हो रहा है. सो श्रीधर, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट, फिर 1400 मतलब वो लोग, तुम बोल रहे हो कि क्योंकि 1400 के ऊपर उस टाइम प्राइस जा रहा है और एक अच्छा वॉल्यूम देके गया है, तो 14 उन लोगों को लग गया कि 1400 का जो कॉल राइटर्स है वो लोगों को लॉस होने लग गया है, राइट? तो वो लोग छोड़ के भाग रहे हैं, राइट? और तुम्हारे मतलब से वो लोग 1440 में जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं 1440 में? एक बार देखो तो प्राइस में उस टाइम क्या है. बिकॉज यहाँ पे उनको लग रहा है कि ये देखो कितना बड़ा वॉल्यूम सेल आया था, राइट? तो उनको लग रहा है कि 1440 के ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं पाएगा, करेक्ट? इसीलिए Yes, वो लोग yes. क्या कर रहे हैं, वो लोग 1400 से 1440 को जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया कि भाई 1400 में कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, तो 1400 तो गया, 1400 पे से हम लोग रहेंगे तो हमको लॉस होगा. पर सेफ कौन सा जगह है? तो सेफ है 1440, क्योंकि यहाँ पे उनका नेक्स्ट था. तो वो लोग इसको छोड़ के 1440 में गए. इसीलिए तो वो लोग 1420 में इतना नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि 1420 भी क्रॉस कर जाएगा. उसमें कुछ देर इज नॉट मच रेजिस्टेंस नियर 1420, ठीक है? यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है उनका? कोई वॉल्यूम वाला रेजिस्टेंस नहीं है. मेजर वॉल्यूम रेजिस्टेंस कहाँ है तुम्हारा? इस जगह पे है, राइट? यहाँ पे ही सेलिंग शुरू हुआ है, देखो मेजर एक. तो वो लोग 1440 को गए. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई दे मूव टू 1440. Yes, sir. So that means, But why हाँ, 1500 is हाँ, reducing? I'll come to that. I'll come to that. That means 1440 उनको लग रहा है कि सेफ जोन है, 1440 तो क्रॉस नहीं करेगा, राइट? गुड. तो 1500 लोग क्यों डर रहे हैं? अभी तो 1440, नाउ राइटर्स आर श्योर दैट कि 1440 क्रॉस नहीं करेगा. इसका मतलब 1500 तो पूरा सेफ है, राइट? देन व्हाई दे आर स्कैर्ड, व्हाई दे आर लिविंग 1500? टू थिंग्स, ओके? इसीलिए मैं बोल रहा हूं ओआई का कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इजी, बट थिंक फ्रॉम ए राइटर्स प्रोस्पेक्ट. सोचो कि तुम 1500 का ओआई सेल किए हो टाटा स्टील में, ठीक है? कितने रुपए में सेल किए होगे तुम? लेट्स सी, कितने रुपए में सेल किए हो तुम 1500? मैक्सिमम जो सेल आया है वो कहाँ पे आया है तुम्हारा? कितने रुपए में है वो? 15 रुपए में सेल हुआ है, राइट? फिर वो बढ़ 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 के गया था तो कोई 60 रुपीज में भी. इस अभी देखो, सिर्फ ओआई नहीं, ओआई का प्राइस देखो और देखो कि कहाँ पे ज्यादा राइटर्स एंटर हुए हैं, कहाँ पे उनको लॉस होगा. दैट गिव्स यू ए प्रोस्पेक्ट. अगर यहाँ पे ओआई डिक्रीज हो रहा है ना, और राइटर्स तो यहाँ पे बैठे हैं, उनको कुछ लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है? स्टॉक जाके तुरंत पंप एंड डंप हो जाएगा. पर सोचो, जैसे ही मेजर राइटर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे लोग कितना बेच रहे हैं? वही 1500 को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 25-26 रुपए में बेच रहे हैं, राइट? सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे ऐड हुआ है? ये छोड़ दो, ये वाला तो वो मंथली का हुआ होगा, मंथ का एडजस्टमेंट, वो फॉरगेट इट. ज्यादा बेचे हैं ये इसमें 58 रुपीज में बेचे हैं. फिर कितने में बेचे हैं? 37 में बेचे हैं. और कितने में बेचे हैं? 25 में बेचे हैं. ऐसे बेचे हैं ना? तो एवरेज जो है तुम्हारा वही 25 28 उसी रेंज में आ रहा है प्राइस, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे तो इसीलिए मैंने एक विवाप लगा के रखा है जो तुमको एक एवरेज प्राइस दे, कि उसका एवरेज प्राइस है, और ये एक ईएमए है 21 ईएमए, कि उसका एवरेज प्राइस अभी क्या है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का. एवरेज प्राइस से पता चलेगा ना. अगर एवरेज प्राइस के ऊपर ऑप्शन प्राइस है, इसका मतलब कौन लॉस में है? राइटर्स, सेलर्स जो है, राइट? अगर कोई चीज का एनी स्टॉक इफ इट इज ट्रेडिंग अबव एवरेज प्राइस, वो कोई भी एवरेज लो तुम, 200 लो, 21 लो, फॉरगेट अबाउट दैट. इफ ए स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव एवरेज प्राइस, दैट मीन्स हु इज इन लॉस? जो सेलर है.
If a stock is trading below the average price, that means who is in loss? Buyer. ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को? Hmm. Anyone has any query? कोई, अरे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो कौन लॉस में आएगा? सेलर. स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो कौन लॉस में आएगा? बायर. ठीक है, और हम लोगों को तो एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है ना, कौन कितने में बाय किया है, कौन कितने में सेल किया है, तो इसीलिए हम लोग ये एवरेज ले लेते हैं कि जो एवरेज प्राइस है उसको एवरेज ले लेते हैं। उसके ऊपर है तो जितने सेलर्स है उनको लॉस है, उसके नीचे है तो जितने बायर्स है उनको लॉस है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इसका एवरेज प्राइस क्या था उस दिन। ठीक है, उसके ऊपर गया तो सेलर्स को लॉस है, तो वो लोग निकलेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन 1500 सी। प्रैक्टिकली क्या हुआ ना, 1400 लोगों को लगा कि 1440 इज ए सेफ जोन। ठीक है, 1500 लोगों को भी लगा 1440 इज ए सेफ जोन, तो यहां से स्टॉक रिवर्स कर जाएगा, उनको ये लगा। ठीक है, इसीलिए तो वो लोग 1440 में आ गए 1500 को छोड़ के, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। बिकॉज ये क्या हुआ, थिंक उस टाइम 1500 का स्टॉक प्राइस, सॉरी कितना था ऑप्शन प्राइस? 11 रुपीज, 14 रुपीज, राइट? और 1440 का कितना था उस टाइम प्राइस? 32 रुपीज। So they are getting 3 times here if they will sell this strike 1440। तो वो लोग क्या किए, वो लोग 1500 से निकले एंड 1440 में आए बिकॉज दे विल गेट मोर प्रॉफिट ना। सो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग कि टाटा स्टील आएगा 1440 में और यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आने तक उनका जितना भी ज्यादा प्राइस में उनको मिला वो ऑप्शन वो लोग सेल कर दिए 1440 का कॉल ऑप्शन, फिर ये नीचे आ जाएगा तो उनको वो एक्सपायरी तक दे विल गेट दैट। 1500 में रहेंगे तो कोई उनको लाइक दे विल गेट वेरी लेस प्रॉफिट बिकॉज वो 11 रुपीज में है और ये 30 रुपीज में है। दैट इज द रीजन दे वर ऑल्सो सो कॉन्फिडेंट कि ये 1440 ब्रेक नहीं होगा, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग 1440। इसीलिए देखो सारे सारे जो ऑप्शन सेलर्स है वो 1500 से आगे 1440 पे, जो 1400 था वो लोग 1400 से, इन लोगों को लॉस हो रहा है एक्चुअली, 1440 वालों को लॉस हो रहा है, सो दे वांट टू कट देयर लॉसेस, दैट्स वेयर दे केम टू 1440। 1400 पीपल, वो लोग क्यों 1440 में गए? बिकॉज उनको 1400 में लॉस हो रहा था, हाँ सॉरी, उनको 1400 में लॉस हो रहा था, तो इसीलिए वो लोग 1440 में गए क्योंकि 1440 इज सेफ। 1500 लोग 1440 में क्यों गए? क्योंकि 1500 में उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। टू गेट मोर प्रॉफिट दे वेंट टू 1440। नाउ यू गाइस गॉट इट? Yes. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एवरी टाइम मतलब वाई का थोड़ा चेंज होता है, क्यों लोग कर रहे हैं। सोचो तो अगर कोई श्योर शॉट है कि मार्केट 1440 के ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो सब लोग 1440 का ही कॉल राइट करेंगे ना। वो लोग क्यों 1500 का राइट करेंगे? 1500 में कुछ प्रीमियम ही नहीं बचा है, तो इसीलिए वो लोग 1440 में आ गए और ये लोग 1400 से ये भी 1440 में आ गए, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख ही रहा है। देखो कितना अच्छे से बाइंग आया था और पूरा सेल हो गया, राइट? इतना तक तो स्टोरी सबको पता है। अभी सोचो अगर मार्केट 1440 को क्रॉस किया तो क्या होगा? ऑल ऑफ देम विल बी इन लॉस, राइट? 1440 का जितने कॉल राइटर्स है वो लोग लॉस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये 1440 का सी डिक्रीज हुआ, तुम लोगों को यहाँ पे बाय करना ही था। मतलब 254 को ना आंख बंद करके बाय करते ना, क्योंकि 254 को सारा वाई डिक्रीज हो रहा है, सारा वाई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कॉल साइड दे आर वेरी स्केर्ड, क्योंकि ये लोग जो 1500 से 1440 आए थे वो लोग भी निकल रहे हैं, 1400 से 1440 आए थे वो लोग भी निकल रहे हैं। मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं उस दिन। उस दिन जो भी हुआ है प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ठीक है, इफ यू सी टाटा स्टील, sorry, Tata Steel, and you see the volume, the buying volume and the selling volume, this is just a profit booking, ये और ऊपर जाएगा। कंफ्यूज्ड? कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए? Slightly confused कि why the writers were writing on 1440 and 1500. Hmm. It I'll is have to Aditya. see the price. Yeah, this is Aditya. ठीक है, I'm slightly फॉरगेट अबाउट confused. टाटा स्टील। ठीक है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, कोई
कोई और एक स्टॉक लेते हैं, ठीक है। टेल मी एनी Can अदर you स्टॉक। take Eicher Motors or anybody else can suggest something? व्हिच वन? Eicher. Eicher Motor. ठीक है, ओके। सो 12th को ये डिक्रीज हुआ था, राइट? इट गॉट सोल्ड आउट, राइट? 12th को। सो लेट्स गो टू Eicher Motor and see दिस इज द वाई यू आर सीइंग टुडेस वाई, ठीक है। इसको देख के ही पता चल रहा है कि कितना, देखो कॉल राइट हुआ है, कितना कॉल, ऑल दिस डीप, सॉरी दिस लाइट ग्रीन, ये जो पूरा रेडियंट है, दिस मीन्स न्यू राइटर्स, ठीक है। तो अभी तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि 2500 एंड 2700 के बीच में ही रहेगा, फॉरगेट इट। तो हम लोग उसको देखते हैं कितना प्राइस था, लाइक ऑन 12th व्हाट इज द प्राइस? 2700, राइट? और स्टॉक का प्राइस नीचे गया है, राइट? सो हम लोग कौन सा देखेंगे? पुट ऑप्शन, ठीक है। एंड ऑन और कौन सा है उसके पीछे? 2700 है, 2650, 2600, मैं सब ले लेता हूं। ओके गुड, हम लोगों को 12th को देखना है, 12th को क्या हुआ था। सो दिस इज द 12th। 12th के पहले इसमें कुछ था ही नहीं, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट checking this. See, there is no point checking to see, but I'll tell you what happened, ठीक है, don't worry. Eicher Motor is not that volatile, guys. Still let's see 12th को क्या हुआ, ठीक है। Good. So 12th at what time? Eicher Motor, how did you see? You are already seeing कि हाँ this is getting consolidated. This is actually, मैंने भी एक उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से शायद ऊपर जाएगा, बट इट ब्रोक। फर्स्ट थिंग इज, तो बेसिक प्राइस एक्शन सब में देखो, हाँ, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, वो पूरा देखो, ठीक है। सो ये कौन सा था? 13 था, 12 था, हाँ, 12th अगस्त डे स्टार्ट, ठीक है। उसका प्राइस इज लाइक 2700। सो लेट्स सी Eicher Motor 2700 12th अगस्त, ठीक है, क्या हो रहा है। सो नथिंग इज हैपनिंग, इतना कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो तुम्हारा लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो केम, ये OI स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये OI एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, और लाइक बायर्स, ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स कौन है, इसको पता करने के लिए गो टू बिगर टाइम फ्रेम इन OI, ठीक है। नाउ यू टेल मी Eicher Motor का व्हाट इज द एवरेज प्राइस जिसमें ज्यादा OI सेल हुआ है, ये 2700 PE, व्हाट इज द प्राइस? 82 रुपीज, राइट? यू आर गेटिंग इट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। See this volume, see this volume. So all the put The writers, blue line, right? 85, let's think that 85 rupees you are getting, right? See this volume, Yeah. this volume, what is the range? 85, right? So all the people who Correct. sold 2700 PE, they sold in a rate of 85 rupees. अगर प्राइस 85 रुपीज के ऊपर जाएगा तो क्या होगा उन लोगों का? Lost. लॉस। तो तुमको क्या Correct. करना है, 12th अगस्त को देखो, तुम 12th अगस्त देख रहे हो, कहां पे ये 85 रुपीज के ऊपर गया? यहाँ पे गया, राइट? ठीक है। देखो जैसे ही 85 रुपीज के, हाँ ये 83 85 रुपीज के ऊपर गया, देखो थोड़ा OI डिक्रीज हुआ वहां पे, राइट? और एक बड़ा क्वांटिटी में OI डिक्रीज हुआ है। तो जैसे ही ये 85 रुपीज के ऊपर जा रहा है, और इसके इस टाइम मतलब 85 रुपीज के ऊपर जा रहा है, मतलब सारे सेलर्स को क्या हो रहा है? लॉस, करेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब है सेलर्स कैसे भी करके निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। पर हम लोगों को यहाँ पे OI इंक्रीज हो रहा है दिख रहा है, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि OI इंक्रीज हो रहा है। जब तक पुट का OI डिक्रीज नहीं होता है हम लोग सेल नहीं करेंगे, फॉरगेट अबाउट दैट। एटलीस्ट ऑन 13th अगस्त यू गॉट टू सी द OI इज डिक्रीजिंग, राइट?
तो उस टाइम तो तुम सेल, यू कैन सेल ना ऑन 13th अगस्त. फॉरगेट दैट तुम उस टाइम कैच नहीं कर पाए. आई टेल यू द कॉम्प्लेक्स, ये जो ओआई का जो एडवांस पार्ट है, जब हम लोग वो डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे बायर्स आए हैं. बिकॉज द ओनली थिंग इज सेलर्स का यहाँ से लॉस शुरू हो रहा है 85 से. ठीक है, तो 85 के ऊपर अगर ओआई क्रिएट हो रहा है तो बायर का ओआई क्रिएट हो रहा है. सेलर क्यों रहेगा? टेल मी. if you have sold something in 85 rupees and now the price is already 90 rupees, you are already in loss. Why you will create more position? Right? Market Correct. is, stock is going down and down, you are already in loss, so you will exit. Who will come there? Buyer. Okay, and it is clear that 85 was the average price for 2700p. So when the price goes above 85, they will be in loss. So sellers will go, only buyers came. Forget about that. वो तुम लोगों ने कैच नहीं कर पाया. Forget. यहाँ पे तो here you saw OI decreasing, right? 13th morning OI decreasing, right? Sell that time ना. 13th morning में क्या हुआ तुमको? See, यहाँ पे तो OI तुम, मतलब तुम OI decrease हो गया देखे ना, तो यहाँ पे sell करते, आराम से will get money. If you are Sell करते confused, मतलब call या put, you are saying sell, not buy. what we are seeing, put, right? If put OI हाँ, is, if put OI is decreasing, that means who is in loss? Put seller, right? So correct. put seller, when put seller will get in loss? When stock will go? Above 85. The option price will be Forget above about it. When 85. stock will go down, that time put seller will Yeah, get yeah. loss, right? Sorry. Yes, the put So right. Yes, correct. so sell the future. Acha. If call OI is decreasing, buy future. If put OI is decreasing, sell future. Simple. Okay. ठीक है, फ्यूचर या कैश तुम जो भी करो, दैट इज योर चॉइस. ठीक है. So you don't. Okay. So let me ask the question in a different हाँ, way. let's Instead of selling future, which requires a lot of margin, right? How to comprehend the same by buying or selling the options? I'll So show for you. example, I'll show you. okay, You have asked that, okay. that's good. I'll show you in a bit. Okay, वो मैं सोच रहा था थोड़ा एडवांस में कवर करूँ. But just give me one moment, guys, and in that time, just be ready with your question. We'll connect in 1 minute. Okay. Okay, guys, I'm back. Tell me, क्या क्वेश्चन है? दिनेश, कार्तिक, आदित्य, श्रीधर. I have Dinesh here. I just have one question. Can we find a reversal using OA? Like, is there any approach which you have followed already or something like that? Yes, I'll show you. Tell me the stock. You just figure out which stock you want to see the reversal. We'll see the OI. Okay. Uh, And what is the yeah, next maybe we question? can take Airtel. We'll see that. We'll see that, Dinesh. I got Yeah, your point. okay. Other point is like you have margin issue, so you want to go instead of future, you want to go option buy. That also I'll say. Anything else? No, you're good. And again, guys, these are like I have not read it from any book. ये पूरा market, like whatever I see in market, I'm telling you. ठीक है? तो do your analysis, see what is working, what is not working. Okay. Let's think that isomotor. So my point is, when I saw that OI is put OI is decreasing, what I'll do? I'll do a sell, right? One lot. Okay. Clear? What is the margin you need? 207. This is clear, na?
Now, to your point, it was, I think, Sridhar, you asked this, right? Yeah, Aditya, I think Okay, Aditya. Aditya, you asked it, huh? That you want to Yeah. see. So because now we have to see what is the Eiser motor price now. 25, huh? Okay, let me say take 2600 so that you will understand that properly. Sit. Okay, I'll come to this. I'll come to this. First, let me explain you. ठीक है? So now तुमको पता है कि ये OI पुट का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों को इधर कैश में सेल करना है, फ्यूचर में सेल करना है, या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज, अगर तुम फ्यूचर में सेल करोगे तो तुमको 207 का चाहिए मार्जिन, ठीक है? नाउ थोड़ा आते हैं, थोड़ा डीप में देखो ऑप्शंस को, ठीक है? ग्रीक्स पे आते हैं। अगर तुमने फ्यूचर को सेल किया तो तुम्हारे डेल्टा कितना है? 100 है, माइनस 100 है, राइट? तो हाँ तुमको अगर ऑप्शन में वही 100 डेल्टा मिल जाएगा तो तुमको वही सेम प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट ठीक है, करेक्ट तो मैंने क्या किया, मैंने एटीएम पुट दोनों सेट कर दिए, उसका डेल्टा कितना आ रहा है? 100 से ऊपर आ रहा है, देखो, ठीक है? करेक्ट तो और मुझे मार्जिन कितना लग रहा है? 60,000। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा एक ऑप्शन चेन में गया मैं, और मैं ऐसा दोनों पुट ऑप्शन लिया जिसका डेल्टा 50 के आसपास हो, ठीक है? ये 4950 है, ये 2550, तो मैं ये 2600 का ले लिया, तुम 2550 का भी ले सकते हो, ठीक है? मैं वो कर देता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, पर मैं इसको मना करूंगा अभी, क्यों मत करो, ठीक है? Alright. अभी तुम्हारा क्या हो गया? डेल्टा अराउंड 100 ही है ना? फ्यूचर तुम सेल करो या दो पुट ऑप्शन बाय करो एटीएम, तुम्हारा डेल्टा सेम है ना? तो प्राइस तुमको प्रॉफिट लॉस सेम ही होगा। अगर मैं देखूं वेब चार्ट में, जब तुमको ये 2450 के आसपास आ जाएगा इसका प्राइस, तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? 32,000, 33,000, राइट? वैसा ही सेम प्राइस अगर तुम्हारा 2456 के पास आ जाएगा तो तुम्हारा कितना हो रहा है? वही सेम 38,000 आसपास, सेम ही प्रॉफिट हो रहा है, राइट? और यहाँ पे बेटर पार्टी तुम्हारा लॉस तो कम मिनिमाइज्ड है, लाइक अराउंड 22,000 लॉस है। यहाँ पे लॉस हुआ था, बहुत लॉस हो जाएगा, राइट? फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में करो, ऑप्शन में मत करो? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज, फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टॉक मतलब उतना ट्रेडेबल नहीं है या फिर इतना उसमें वॉल्यूम नहीं है ना स्टॉक में, तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमको ऑप्शन में जो स्प्रेड मिलेगा ना, वो तुमको थोड़ा लॉस दे देगा, ठीक है? सो इफ यू विल डू एनी ऑप्शन लाइक ऑप्शन बाइंग, और फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक वैसा मूव नहीं दिया ना, तो तुम्हारा ऑप्शन तुरंत लॉस देना शुरू कर लेगा, ओके ठीक है? पर फ्यूचर में क्या है ना, फ्यूचर इज ऑल्सो रिस्की, तो तुम्हारा अगेंस्ट में जाएगा तो तुमको लॉस ही होगा, ठीक है? पर उस टाइम क्या है ना, तुम एटलीस्ट तुम क्विकली निकलना चाहते हो तो तुमको उतना स्प्रेड नहीं रहेगा, तो तुमको थोड़ा लॉस में निकल। पर ऑप्शन में जैसे ही स्टॉक रिवर्सल लेगा, स्प्रेड बहुत बढ़ जाएगा, तो तुमको दिखा रहा होगा स्क्रीन पे कि अभी निकलूंगा तो तुम्हारा लॉस 2000 होगा, पर जब तुम 2 लॉट का ऑप्शन क्लोज करोगे तुम्हारा लॉस 4000 हो जाएगा। जबकि फ्यूचर में तुमको दिखा रहा होगा कि लॉस 2000 है, उसको क्लोज करोगे तो 2500 में या फिर 2500 में तुम निकल सकते हो लॉस में, ठीक है? वही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। वैसे ही फास्ट मूव किया तो ऑप्शन बहुत फास्ट मूव कर जाएगा, ठीक है? तो तुमको उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, पर उसमें लॉस वो अपने स्प्रेड के वजह से, और ये ऊपर से मार्जिन रूल के वजह से स्प्रेड और भी बढ़ गया है, ठीक है? पर ऐसा नहीं कि ऑप्शन में मत लो। मैं ये बोलता हूँ कि जब तुम 100% श्योर हो कि स्टॉक उस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल ये आइसर मोटर का लेट्स से, हम लोग आइसर मोटर देख रहे हैं कि, थिंक फॉर ए मोमेंट कि आइसर मोटर ऊपर जा रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि 2600, 2650, 2700 सबका ओआई डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक ऊपर ही जाएगा, राइट? तो उस टाइम में क्या करूंगा, उस टाइम में ऑप्शन बाय कर सकता हूं,
पर मैंने देखा कि 2600 का OI डिक्रीज हो रहा है पर 2650 का OI इंक्रीज हो रहा है, जैसे टाटा स्टील का देखे थे। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 50% सेटिस्फाई हो रहा है, 50% नहीं हो रहा है, तब मैं तो ऑप्शन बाइंग करूंगा ही नहीं। इसीलिए वो मार्जिन का इशू हो रहा है बोल के, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करके रखा हूँ ये वीक के लिए, तो मेरा मार्जिन का इशू हो रहा है बोल के मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ। द रीजन इज, अगर मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है ना सारा OI के तरफ से, तो मैं उस टाइम ऑप्शन बाय नहीं करता हूँ। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली डू ऑप्शन बाइंग, प्रोवाइडेड अगर तुम्हारा OI का कॉन्सेप्ट जो है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर का 3-4 जो मेजर OI है वो रिड्यूस होना चाहिए, वैसे स्टॉक नीचे जा रहा है तो नीचे का 3-4 OI जो है पुट OI वो रिड्यूस होना चाहिए, तब तुम ऑप्शन बाय करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन के लिए बाय करके रखो, 3 दिन के लिए बाय करके रखो, जैसे कि हम लोग उस दिन IGL या सॉरी पावर ग्रिड लिए थे 1.8 में मैंने लिया था, मैंने उसको 2 पॉइंट कितने में एक निकाल दिया 2.2 या किसमें, पर उसके नेक्स्ट दिन वो अराउंड 6 रुपीज गया। ऑप्शन बाइंग में दैट इज द गुड थिंग ना कि मतलब, एंड द अदर थिंग इज व्हेन यू कम टू एडवांस्ड ऑप्शन, वो जैसे जैसे तुम ऊपर ऊपर जाओगे ना, मेरे हिसाब से डीप ITM ऑप्शन को हटा के ATM ऑप्शन लेते जाओ। सी सिंपल थिंग, अभी प्राइस इज अराउंड 2550, ठीक है, व्हेन प्राइस कम टू 2660 एंड देन 2700, तो तुम क्या करो, लाइक यू विल गेट सम प्रॉफिट हियर, राइट? book this option, get your profit, whatever profit you are getting, on the profit money itself you buy this option। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कैपिटल भी लॉस नहीं होगा, और अगर उसके ऊपर प्रॉफिट आया तो और अच्छा है, अगर उसमें लॉस आया तो तुम्हारा प्रॉफिट से ही लॉस जाएगा, यू विल नॉट गेट फ्रॉम योर कैपिटल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सपोज you bought 2600 call option, stock started moving up, it started moving and going to 2700, okay, so do one thing, book profit in 2600, and suppose you got profit of 12,000, and buy the 12,000 or 10,000 worth stock from here, like the CE option from here, not stock, the option from here. So what is happening, in your profit money you are buying that option. So option buying, always keep it in mind, if stock is not moving in your direction and you saw that OI is going against you, do not think for a second, cut the position। like suppose you have taken a put option, okay, or like so suppose you have taken a put option and you started seeing that, let's take an example, suppose we have taken a put option and we saw that OI is increasing, right, for put option, immediately come out of that option, immediately, वो बाद में जाके तुमको प्रॉफिट देगा लॉस देगा, that is a different thing, immediately come out of that option if you are not seeing that OI is continuously decreasing, ठीक है। बट व्हेन यू सी दैट ये पूरा OI ऐसे डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गया है, दैट मीन्स देयर इज नो मोर OI, come out of that option, go for the next strike price with a delta 0.5, okay, so in that way what will happen, whatever Why profit, are you why are you saying delta 0.5 we should because notice? delta 0.5 is ATM option, okay, Acha, yes. Okay, sorry, I got so your point. check Sorry, yeah. check the delta for where you are getting 0.5 or Yeah, 50, deep in the okay, money and out the money will be so 1 minus 1. okay, so Yeah. if you go deep in the money, that is similar, what is the delta of deep in the money? 90, 100, that 1. means it is similar to going for a future trade, right? Correct. ठीक है, पर सोचो डेल्टा 0.5 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ स्टॉक विल मूव इन योर डायरेक्शन, you will get, suppose stock will move in your direction 1 rupees, you will get 50 rupees, sorry 100 rupees, then you will get 50 rupees, sorry 48 rupees profit, right? If stock will move in your direction 100 rupees, you will get 48 rupees profit, correct? If it Yep. will move against your direction 100 rupees, how much loss you will get? 48 rupees. But if you will go for a future, stock moves in your direction 100 rupees, you will get 100 rupees. If it does not go in your direction 100 rupees, you will get loss of 100 rupees, right? So Correct. if you are doing option buying, then be careful, go with 0.5 delta so that your profit will be minimum but your loss will also be minimum, okay? And if you are so confident you do not have your capital or estimated margin, go for two option buying, which is as I told you ना, वो 100 करो डेल्टा को, 2 ATM ऑप्शन बाय करो, वो 100 हो जाएगा, ठीक है, यू विल गेट इन लेस मार्जिन, ठीक है। आई थिंक दिस इज वन, द अदर थिंग वाज ऑन रिवर्सल, राइट?
Yeah. Okay, which stock you want to see how the reversal came? You have any stock where you fetched the reversal and you got lost? Dinesh or someone has asked, right? Sridhar? Yeah, he Sridhar, asked, but maybe we can check with Airtel. Airtel. Okay. You got some loss there, Sridhar? No, I'm Dinesh, but I Sorry. didn't get any loss, but I'm curious about the method. Okay. So where you want to see? Where do you think the reversal came? Which point? Which date you Um, want? maybe we can take the 10th of August, wherein 10th it of reversed August. from 620 levels, I think. Okay. Let's see. Okay. From this level, actually 600 level, 10th of August. Okay. Okay, so right now it is showing because after that it moved to 636, right? So 600 was a good call that day, right? 10th of August. So yes, 600C. I'll show you both, huh? 600P. Okay, good. And we'll go to 10th August. Okay, 10th August. Okay, great. So 10th August, let's go to that day and see a 3-minute chart. 13. See, I always believe in seeing the exactly how it is happening. Okay, so 10th of August, stock started going down, right? Okay, right, Dinesh. So that means if stock will start going down, what will happen to the OI things? Put OI will decrease, call OI will increase, right? Yep. So when this stock is here and you are thinking that stock is going down and it has gone down of 600, that means at somewhere around 10th August 10:20, somewhere that time 600 PE will decrease and 600 CE will increase, right? Because the trend we are thinking that stock will go down. That means PE writers will leave, so PE oil will decrease, CE oil will increase at around 10:20. Okay, let's go there. This is 600 PE. 10:20. What happened? 10 o'clock. Okay, nothing happened. What happened at 11 o'clock? The PE, it started, the OI started. increasing. Put OI is increasing. That means 600 writers are thinking that stock, and see the increase. So 600 writers are thinking that stock cannot go below this. What happened to the 10th, 10th August? What happened here? See, like how you got it. 10th August शुरू में ही like you see ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था. You are seeing that कुछ चेंज नहीं हुआ है वाई में. उसके पहले दिन इनके जो था, but it is not. And here around 11:30 you saw that call OI is decreasing. That means stock will go up. Around 11 o'clock, put OI is telling that stock will go up. Around 11:30, call OI is telling that stock will go up. What happened around 11:30? See here. This is the time, right? You also have to see, like, see this volume and how what you did in 11:30. At least by 11:30 you know na कि ये breakout दे रहा है and it will go up, because put OI is increasing, call OI is decreasing. Simple. Bye, Parthi. Yeah, I think this is maybe we can see as other example. Maybe we can check Vedanta, like Vedanta. for Friday chart. Yeah. हाँ, फ्राइडे में बोला था मॉर्निंग में. फ्राइडे इज ए पंप एंड डंप. बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. व्हिच डेट वेदांता? व्हिच डेट Yeah, वेदांता? Friday only we can check. Friday. Okay, okay. This Friday, huh? This is the last. After this, we'll stop the session for today. Yep. Okay. So let me stop the recording first. What is happening? Just give me one moment, guys.